Hello everyone, welcome to the today's session of Big News. Now you must have read today's newspaper as well, and it says headline ही था government hikes GST for household items, right? Household item पे GST increase किया है. Now GST is one of those topics which always stays in news. Like last month, May it was in news because of the Supreme Court ka verdict on GST Council and state and center ka role regarding this. Then again, it was in news कुछ महीने पहले because of hike or you can say increase in the GST collection, जो record increase हुआ था in GST collection. तो one of those things which always stays in news and which always will stay in news. तो इसलिए I thought to cover the topic of GST so that आज के बाद कभी भी जीएसटी के न्यूज आती रहे इन द न्यूज़पेपर सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज न्यूज इजीली राइट यू नो इफ देयर इज अ पैसेज तो आप 4 से 5 क्वेश्चन जीएसटी के ऊपर आराम से आंसर कर सकते हो तो लेट्स स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट व्हाई दिस टॉपिक वाज इन न्यूज फर्स्टली क्या था ये न्यूज सो गवर्नमेंट ने जीएसटी हाइक किया है हाउस होल्ड आइटम्स में दिस इज फ्रॉम द हिंदू देन दिस इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस जीएसटी रेट hikes what items will now become expensive तो चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे वो द हिंदू हो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन द रेट्स ऑफ जीएसटी ऑन पर्टिकुलर आइटम्स है ना कुछ पर्टिकुलर आइटम्स जिनके ऊपर ये इंक्रीज आपको दिखाई दे रहा है जैसे यू कैन सी लाइक हेडलैम्प जो एलईडी लैम्प्स वगैरह है ये सब इनके ऊपर इंक्रीज हुआ है तो विल सी कि क्या इंक्रीज है क्या नहीं है बट फर्स्टली टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक we have to understand the complete topic of GST. पूरा GST आपको पहले समझना होगा so that you are able to understand this. Now to understand GST or taxation, you should know what is the basic difference between direct tax and indirect tax या किस टाइप के taxes होते हैं. So there are two types of tax which are called as direct tax and indirect tax. एक को कहते हैं direct tax, दूसरे को कहते हैं indirect tax, right? Direct tax and indirect tax. Now direct tax are those taxes which are levied on one person and the same person have to pay the tax. That means the burden of paying this direct tax cannot be shifted. Burden of paying the tax cannot be shifted from one person to another person. एक person से दूसरे person पे burden of paying taxation cannot be shifted. Shift नहीं हो सकता. If we talk about indirect tax, अगर हम indirect tax की बात करते हैं, it is that tax इसका burden can be shifted from one person to another person. It can be shifted from one person to another person. इसको आप shift कर सकते हो. That is indirect tax. Now we'll take this with an example so that you can understand this properly. जैसे कि suppose कर लो there is a company called say Nestle, है ना? I take this example in classes as well. तो जैसे कि एक कंपनी है called Nestle, ये बनाती है मैगी, right? ये बनाती है मैगी. So in India, एक साल में in 1 year, whatever profit they have made by selling Maggi, मैगी के सेल की वजह से जो प्रॉफिट हुआ that is supposedly 1000 करोड़. That is supposedly 1000 करोड़. So the income of Nestle is 1000 crore. They have to pay corporate tax on this. Corporate income tax कह सकते हो आप इसे. Corporate tax जो इनको पे करना पड़ता है. Say suppose I am saying suppose, right? Suppose कर लो hypothetical situation कि वो 30% है. That means they have to pay 300 crore as a corporate tax. This is a direct tax which was levied on Nestle and it is to be paid by the Nestle. It is इसका जो burden होता है that directly falls on the taxpayer or it is paid directly by the taxpayer to the respective authority. इसे हम कहते हैं direct tax. इसको आप shift नहीं कर सकते. तो कौन से को आप shift कर सकते हो? So इसमें है suppose again the same product Maggi is there 12 रुपए अब शायद 14 की हो गई है लेकिन लेट्स कंसिडर 12 रुपए की है ना इसमें अगेन सपोज कर लो देयर इज अ टैक्स दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी ये लगाया हुआ है 2 रुपए का जीएसटी है सो दिस जीएसटी वाज एक्चुअली लेविड ऑन मैगी दैट इज ऑन नेस्ले लेकिन नेस्ले ने क्या किया अपनी प्राइस में इस जीएसटी को इंक्लूड करके द बर्डन दे हैव शिफ्टेड ऑन द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग इट the person who is consuming this particular product उसके अपने shift कर दिया इसको so what is indirect tax it is a tax which is paid indirectly by the people to the government लोग जो उसे consume कर रहे हैं it is paid by the ultimate consumer to the government not by the people in between जो लोग हैं वो नहीं पे करते like Nestle will not pay this will be paid by the consumer but on whom it was imposed actually it was imposed on Nestle on the product called Maggi इस प्रोडक्ट पे इसको बीच में इम्पोज किया गया था बट इसको क्या किया इन्होंने शिफ्ट कर दिया इसको क्या इन्होंने शिफ्ट कर दिया on the person who is consuming this product
on the person who is consuming this product. So the burden of tax indirectly fall on the ultimate consumer, called, and they are called as indirect taxes. एग्जाम्पल इज सर्विस टैक्स, इसके बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि वैल्यू एडिशन टैक्स, जैसे कि देर इज, यू कैन सी सेल्स टैक्स, देर इज एक्साइज ड्यूटी एंड मेनी मोर टैक्सेस, बहुत से टैक्सेस हो सकते हैं ऐसे, राइट। एंड ये बर्डन जो है ये शिफ्ट कर दिया जाता है ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट, तो इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एंड डायरेक्ट टैक्स में देर इज इनकम टैक्स, देन देर इज कॉर्पोरेट टैक्स, देन देर इज कैपिटल गेन टैक्स, जो आपका वर्थ होगा, जो भी आपने खरीदा है, कैपिटल गेन टैक्स उस पे जो होता है, मे बी यू हैव परचेस्ड लैंड, यू हैव परचेस्ड गोल्ड, उसके जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उस पे जो टैक्स होता है, दैट इज कैपिटल गेन टैक्स। ऑल दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस जो उसके ओनर को पे करने पड़ते हैं। सो द बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन ऑन whom it is imposed। और थोड़े से डिफरेंसेस अगर देखना है तो यू कैन सी दिस इज द डिफरेंस का चार्ट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। Direct tax paid directly by the public to the government, indirect is paid indirectly, and the burden cannot be shifted in the case of direct tax, it can be shifted in the case of indirect tax, right? So these are the differences। income tax, service tax इसके example है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट टैक्स को जो लेवी करने के तरीके होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स, देयर आर पॉसिबिलिटी कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, वेदर इट इज क्लैट और वेदर इट इज एलेट, राइट। एलेट में भी अब थोड़ा बहुत पैटर्न में देयर इज अ चेंज, नहीं तो हमेशा वन लाइनर क्वेश्चंस हुआ करते थे, नेम, नंबर और यू कैन से सम कंट्रीज नेम वाज द आंसर, बट देयर इज स्लाइट चेंज नाउ, थोड़े बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। सो बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन से ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? So simply to understand any type of tax, whether it is progressive or whether it is regressive, just understand what is the impact of that tax in the society. अगर वो टैक्स सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश करता है, if that tax is trying to bring equality in the society, we'll call that tax as a progressive, right? और अगर वो सोसाइटी में इनइक्वालिटी लाता है तो वी कैन कॉल इट एज रिग्रेसिव, वी कैन कॉल इट एज रिग्रेसिव, राइट, वी कैन कॉल इट एज रिग्रेसिव। तो होगा क्या? ऑफ कोर्स प्रोग्रेसिव किसे कहेंगे? इफ विथ राइज इन इनकम, अगर इनकम का राइज हो रहा है उसके साथ अगर टैक्स रेट भी इंक्रीज हो रहा है, इफ द टैक्स रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, अगर इनकम किसी का बढ़ा तो उसका टैक्स रेट भी बढ़ गया, उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा, तो उससे क्या हो जाएगा? द पर्सन हु इज हैविंग मोर इनकम, जिसका इनकम टैक्स की वजह से रिड्यूस हो जाएगा, और जिसका इनकम लेस है उसका इनकम कम टैक्स रेट की वजह से ज्यादा दिखाई देगा। दिस विल ब्रिंग इक्वालिटी इन सोसाइटी, ये सोसाइटी में इक्वालिटी लाएगा, तो वी कॉल इट एज प्रोग्रेसिव। सो व्हेन द टैक्स is a tax in which tax rate increases with tax base का amount increase होता है, जैसे tax rate increase होता है वैसे जैसे जैसे tax का base amount increase होता है तो उसे हम progressive कहेंगे। And at the same time, if the tax rate reduces, if the tax rate decreases as the amount of taxation increases, that means आपका income अगर increase हो गया, आपका इनकम 1 करोड़ से, है ना, काश मेरा भी इतना हो, है ना, 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गया, 1 करोड़ पे आपको 30% देना पड़ता था, 2 करोड़ पे आपको 28% देना पड़ता है बस। तो दिस इज कॉल्ड एज रिग्रेसिव, दिस इज कॉल्ड एज रिग्रेसिव। ये क्या लाएगा? इनइक्वालिटी लाएगा सोसाइटी में। इवन एक टैक्स कहते हैं जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स दैट मींस इरिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, ये फ्लैट रेट पे चलता है। जैसे कि अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैगी ओनली। सपोज कर लो मैगी पे हमने अभी एग्जांपल में देखा था 2 रुपए का टैक्स है, एग्जांपल था वो, राइट, रियलिटी नहीं थी, एग्जांपल था समझने के लिए। 2 रुपए का टैक्स है, तो ये 2 रुपए का टैक्स चाहे मैगी अंबानी खरीदे, चाहे मैगी आप लोग खरीदो, चाहे मैगी कोई स्ट्रीट पे जो बेगर होता है उसका बेटा खरीदे या बेगर खरीदे, इट इज द सेम, इट इज द सेम। बट इन 2 रुपए का टैक्स पे करने की वजह से द इनकम ऑफ बेगर इज द वर्स्ट अफेक्टेड, द इनकम ऑफ यू गाइस, है ना, वो ऑल आर वाचिंग, ऑफ कोर्स अंबानी तो देख नहीं रहे होंगे, है ना, तो इनका उतना अफेक्ट नहीं होगा, एंड अंबानी तो सोचना ही नहीं है कि 2 रुपए से क्या इनकम अफेक्ट होगा। बट इनका इनकम तो काफी अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस यू कैन सी जो इवन प्रोपोर्शनल टैक्सेस होते हैं, दे ब्रिंग व्हाट, दे ब्रिंग इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, वो सोसाइटी में इनइक्वालिटी लेके आते हैं, सोसाइटी में इनइक्वालिटी लेके आते हैं, ठीक है। So this is progressive, regressive and proportional taxation. Proportional tax also brings inequality. So over the long period of time you can say proportional tax भी क्या हो सकते हैं?
रिग्रेसिव हो सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जीएसटी को भी इन लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए, इफ इट इज लेविड ऑन द बेसिक फूड प्रोडक्ट्स, जो अभी न्यूज में चल रहा है कि फूड प्रोडक्ट्स या बेसिक एमिनिटीज के ऊपर बढ़ गया, तो क्यों ये ज्यादा हाईलाइट बन रहा है, व्हाई इट इज मेकिंग अ हेडलाइन, बिकॉज इट विल इंक्रीज इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, इट विल इनइक्वली अनइक्वली अफेक्ट द इनकम ऑफ लोअर क्लास। इसलिए ये हेडलाइन बना रहा है, इसलिए ये हेडलाइन बना रहा है, राइट। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टैक्स भी आप देख सकते हो, जीएसटी रिग्रेसिव हो सकता है इन लॉन्ग टर्म अगर उसको सही से नहीं किया गया, लाइक कौन से प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी रखना है ये पहले से सही से डिसाइड नहीं किया गया, दिस माइट ब्रिंग इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज जीएसटी, या फिर हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी थी। सो बिफोर जीएसटी मेनली हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का इतना लेना देना है नहीं इससे, डायरेक्ट टैक्स हमने देख लिया, देयर इज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ऑल दोज आर डायरेक्ट टैक्सेस। इफ यू टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, टैक्सिंग जो है, ये टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स, दिस कम्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट, schedule 7 of our constitution. I hope you all remember by now what are all the 12 schedules of our constitution और किस शेड्यूल में क्या दे रखा है। तो ये शेड्यूल 7 की कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, दैट मीन्स स्टेट एज वेल एज सेंटर इज हैविंग अ पावर टू लेवी दिस टैक्स, एंड दैट्स व्हाई स्टेट ने अपने इनडायरेक्ट टैक्स लगा रखे थे, सेंटर ने अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रखे थे। जैसे कि देयर वाज एक्साइज ड्यूटी, देयर वाज sales tax, there was service tax, there was you can say octroi, there was VAT, value addition tax. इसी के साथ साथ एट द स्टेट लेवल एज वेल देयर विल बी स्टेट का एक्साइज ड्यूटी, देयर विल बी स्टेट्स का सेल्स टैक्स, देयर विल बी स्टेट का सर्विस टैक्स, देयर विल बी एंट्री टैक्स, देयर विल बी इंटरटेनमेंट टैक्स, देयर विल बी सेंटर का होने के बाद स्टेट का वैट, है ना, स्टेट का वैट, देयर विल बी वन कस्टम ड्यूटी एट द सेंटर लेवल, कस्टम ड्यूटी। तो ऐसे छोटे 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 करते हुए देयर वर लॉट ऑफ टैक्सेस, देयर वर लॉट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। और इन इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से हो क्या रहा था, इन इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से हो क्या रहा था, दैट बिकॉज ऑफ दिस इनडायरेक्ट टैक्सेस, if there is any company, if there is any person who want to start a business in our country, कोई अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है हमारे देश में, then just a minute, if a person have want to start a business in our country, अगर किसी को भी हमारे देश में बिजनेस स्टार्ट करना है, what he have to do, he have to come in India and he have to hire a CA first. Why first CA? Because he want to understand the Indian tax structure, हमारे देश का टैक्स स्ट्रक्चर इनको पहले समझना पड़ेगा। आफ्टर दैट जितनी भी जगह पे इनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ही हैव टू इनरोल फॉर दोज टैक्स ऑफिसेस, हर जगह पे जाके इनरोल करना होगा। इफ यू वांट टू स्टार्ट इन द सेंटर, ऑफ कोर्स यू हैव टू इनरोल एंड इन वन स्टेट, अगर वो सपोज गुजरात में ही करना चाहते हैं वहां इनरोल करो, लेकिन आफ्टर दैट जितने भी 28 27 जितने भी स्टेट में इनको इनरोल करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, ही हैव टू इनरोल इन ईच एंड एवरी स्टेट। दैट मीन्स ईच एंड एवरी प्लेस ही हैव टू गो एंड विजिट द गवर्नमेंट ऑफिस, एंड गवर्नमेंट ऑफिस में वी आर हैविंग बाबू, है ना, यू ऑल नो बाबू, है ना, जो सरकारी ऑफिसेस होते हैं, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन ईच एंड एवरी बाबू ऑफ योर लाइफ, एंड दैट्स व्हाई इनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड इंडिया का रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाज नॉट दैट गुड। वर्ल्ड बैंक जो एक रैंक लेके आता था कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना अच्छा है, दैट वाज नॉट गुड। सो इट वाज सजेस्टेड फर्स्टली बाय असीम दास गुप्ता कमिटी। सबसे पहले असीम दास गुप्ता नाम की कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंड किया कि वी शुड हैव जीएसटी, बट इनके रिकमेंडेशन पे जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। याद रखना, इफ द क्वेश्चन इज देयर हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट जीएसटी, इट वाज असीम दास गुप्ता, लेकिन इनके रिकमेंडेशन पे जीएसटी नहीं आया। जीएसटी केम इन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विजय केड़कर कमेटी इन इंडिया। इन्होंने जिस तरीके का जीएसटी बोला था उस तरीके का जीएसटी वी केम अप विथ। तो याद रखना, on whose recommendation GST was introduced, Vijay K, who was the first person, Asim Das Gupta। तो इनके कहने पे इन सारे और मेजॉरिटी ऑफ दीज इनडायरेक्ट टैक्सेस वेयर सबज्यूम्ड, मेजॉरिटी ऑफ दीज इनडायरेक्ट टैक्सेस वेयर सबज्यूम्ड अंडर दिस, इस इनडायरेक्ट टैक्स में इन सबको सबज्यूम कर दिया गया। इट इज लेविड ऑन बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, इसको गुड्स पे एज वेल एज सर्विसेज पे लेवी किया जाता है। जैसे कि वैल्यू एडिशन टैक्स वैट हुआ करता था, इट वाज लेविड एट ईच एंड एवरी स्टेज, जहां जहां पे जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उस प्रोडक्ट में, उस तरीके से उसके ऊपर वैट लगाया जाता था।
सेम वे नाउ जीएसटी इज लेविड एट ईच एंड एवरी स्टेज, जैसे जैसे उस प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन होता है उसको ऐड किया जाता है टू अवॉइड द डबल टैक्स, डबल काउंटिंग हटाने के लिए टैक्स में। एंड दैट्स व्हाई जीएसटी को हम मल्टी स्टेज टैक्स भी कहते हैं, मल्टी स्टेज बिकॉज इट इज लेविड एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। सो just like that it was a multi-stage. There are different slabs, तो अलग अलग स्लैब रखे गए हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%. Now remember this, there is one slab of 0% as well. मतलब there can be a statement or situation that where we will say that okay, ये एक प्रोडक्ट है, सपोज कर लो कोई फूड प्रोडक्ट है, उसके ऊपर जनरली द जीएसटी इज 0%. So it is in the slab of 0%. It doesn't mean that this product is out of the purview of GST. इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट जीएसटी के बाहर है, ये प्रोडक्ट पे जीएसटी है बट द स्लैब इज 0%, अभी इस पे 0% रखा गया है, क्या पता फ्यूचर में 5 हो जाए, 12 हो जाए, 18 हो जाए, 28 हो जाए। करंटली दिस इज अंडर द स्लैब ऑफ 0%। अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट है विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी, जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, दोज आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर देर इज नो जीएसटी, क्योंकि इस पे अभी भी ये पुराने वाले टैक्सेस लगते हैं, सेंटर के एंड स्टेट के अलग अलग टैक्सेस लगते हैं पुराने वाले। नाउ इन द कमेंट सेक्शन आप मुझे इसका रीजन बताओगे, व्हाई दिस प्रोडक्ट्स वेर केप्ट आउट ऑफ जीएसटी। स्टेट को ऐसा क्या फायदा था, स्टेट ऐसा क्यों करना चाहते थे कि इन प्रोडक्ट को जीएसटी के बाहर रखना चाहते थे, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट आर केप्ट आउट ऑफ जीएसटी। जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ ऑन 1st of July 2017, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली 1st जुलाई इंडिया में सेलिब्रेट होता है एज अ जीएसटी डे, एंड 1st जुलाई इंटरनेशनली सेलिब्रेट होता है एज डॉक्टर्स डे ऑल्सो। ठीक है, डॉक्टर्स डे भी होता है इसी दिन। एंड ऑफ कोर्स दिस वाज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया शेड्यूल 7 कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो वी नीड टू डू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल्सो। तो हमने इसको अमेंड किया है और ऐड किया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सिंपल है याद रखने के लिए, 101 शगुन का नंबर है, 101 रुपए का आप जीएसटी पे करेंगे तो शगुन के नंबर का जीएसटी आप पे करेंगे, राइट। शगुन के नंबर का आप जीएसटी पे करेंगे, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। एंड दिस इज 101 अमेंडमेंट जिसके थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अगेन वन मोर थिंग दैट यू विल राइट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर मुझे बता देना व्हाट आर द लेटेस्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नंबर एंड क्या एग्जैक्टली वो अमेंडमेंट है ये आपको बताना है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया एंड देन इट वाज डिसाइडेड कि जीएसटी के रेट्स कौन डिसाइड करेगा, कैसे जीएसटी के रेट्स डिसाइड किए जाएंगे। ऑफ कोर्स देयर शुड बी सम रोल दैट शुड बी गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, बिकॉज स्टेट का भी पावर था इसके अंदर। So there was introduction of Article 279A in our Constitution, which talked about GST Council, जिसने बात की GST Council create करने की, right? And this was Article 279A through which GST Council was created. Now the work of this GST Council is to decide different tax rates, what are the different rules of taxation, what are the different regulations of taxation, and this is governed by a GST council. इसको govern किया जाता है by a GST council कि क्या अलग अलग rates, rules and regulations क्या होने चाहिए। Like GST council decides which product should be in which slab, कौन से product को 0% में रखना है, कौन से product को exclude करना है GST से, right? कब जीएसटी फाइल करना है, साल में एक बार, दो बार, कौन कब फाइल करेगा, ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल, ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल। एंड ऑफ कोर्स स्टेट्स आर आल्सो हैविंग सिग्निफिकेंट रोल इन दिस जीएसटी काउंसिल। It is having Union Finance Minister as a chairperson, Nirmala Sitharaman ji currently, and the finance ministers of the all the states, and finance minister of all the states, सारे अलग अलग states के finance minister होते हैं इसके अंदर। Now, how GST Council takes decision? Because it is having center as well as state के member, right? कुछ center के member है, कुछ state के member है। So, in this, suppose कर लो 100% total voting होती है, 100% total voting का weightage है। In this weightage of central government के जो person है is more, इनको 1/3 वेटेज दिया जाता है। दैट मीन्स 33% अराउंड वेटेज है फॉर द वोट ऑफ सेंटर के लोग। सेंटर के शायद 1% हो, चाहे जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उनके एक वोट का वैल्यू कितना रहेगा 33%। अगर 2% है, 2% है, तो एक एक पर्सन के वैल्यू रहेगा 16.5 16.5%, राइट।
सो इस तरीके से द वैल्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट इज 33%, वेयर एज द वैल्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के वोट इज टू थर्ड, दैट इज 67%। तो स्टेट के पास काफी अच्छी पावर है, 67% वोट है। And the decisions which are taken by GST Council are taken by majority of 75%. That means कोई भी decision अगर पास करना है तो 75% मेजोरिटी होनी चाहिए, that is there should be 3/4 वोट आपके फेवर में होने चाहिए। So the decision cannot be taken with the less than 3/4 of the weighted votes of the members of present and waiting voting. सेंट्रल गवर्नमेंट 1/3 वेटेज, स्टेट गवर्नमेंट 2/3 वेटेज। इनके पास 1/3 है, इनके पास 2/3 है, और इनके पास 3/4 है। इनके पास क्या है? 3/4 है। ठीक है। एंड दिस इज हाउ द डिसीजन इज टेकन। इनके पास क्या मतलब? डिसीजन इज टेकन बाय 3/4, डिसीजन इज टेकन बाय मोर देन 3/4। नाउ जीएसटी को हम कहते हैं, वी कॉल इट एज कॉम्प्रहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। हो सकता है कि पूछा जाए कि क्या जीएसटी कॉम्प्रहेंसिव है, मल्टी स्टेज है, या डेस्टिनेशन बेस्ड है। सो यू शुड नो इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रहेंसिव, मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड। नाउ व्हाई? फर्स्टली इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रहेंसिव। सबसे पहले इसे हम कॉम्प्रहेंसिव कहते हैं। क्यों कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव? बिकॉज इसने मेजॉरिटी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपने आप में सब्ज्यूम कर लिया। मेजॉरिटी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसने अपने आप में सब्ज्यूम कर लिया। लाइक जितने भी स्टेट के सेंटर के थे, almost all the taxes have been subsumed. Secondly, it is called as multi-stage, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी समझाया था, because it is imposed at the every step in the production process. And फिर you can say जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है अलग अलग स्टेज पे, उस वैल्यू एडिशन के हिसाब से इसको लेवी किया जाएगा। इट विल नॉट बी कॉल्ड एज वैट, इट विल बी कॉल्ड एज जीएसटी ओनली, बट वैल्यू एडिशन जितना हुआ है उसके हिसाब से इसे लेवी किया जाएगा एट डिफरेंट स्टेजेस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मल्टी स्टेज्ड। And lastly, it is also called as destination based tax. Now, why destination based? इसका मतलब क्या होता है? I will just try to explain. Earlier, before GST, taxes were origin based. Taxes were origin based. That means, suppose कर लो, गुजरात में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, गुजरात में किसी चीज का फैक्ट्री है, अमूल का फैक्ट्री है, तो अगर गुजरात के अमूल के फैक्ट्री में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, दैट थिंग विल बी ट्रांसपोर्ट से सपोज इनटू बिहार। बिहार में जाके अमूल का बटर यहां से यहाँ गया और यहाँ पे कंज्यूम हुआ। Earlier, before GST, the majority of tax in this situation was collected by गुजरात गवर्नमेंट, जब ये प्रोडक्ट फैक्ट्री के बाहर जा रहा था या फिर ये प्रोडक्ट स्टेट के बाहर जा रहा था। So the taxes were origin based. Taxes were origin based, and इसमें क्या होता था? Manufacturer states were getting more profit, whereas consumer states were getting less money. हालांकि ये प्रोडक्ट बिहार में कंज्यूम हुआ है, बिहार के लोग ने इसका पैसा दिया है, लेकिन इसका कलेक्शन किसके पास ज्यादा चला गया? गुजरात गवर्नमेंट के पास ज्यादा चला गया। सो दीज वेर ओरिजिन बेस्ड, एंड जिसकी वजह से वी कैन सी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र और गुजरात और तमिलनाडु और इवन कर्नाटका, these are growing fast. इनका ग्रोथ काफी अच्छा सही चल रहा था। whereas the consumer states like बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, these are not performing that well. हालांकि प्रोडक्ट इनके स्टेट में कंज्यूम हुआ है। दैट्स व्हाई इट वाज डिसाइडेड कि जीएसटी को हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बनाएंगे। दैट मींस मेजर अमाउंट ऑफ द मनी विल बी गिवन टू दो स्टेट्स वेयर द प्रोडक्ट इज गेटिंग कंज्यूम्ड। So, because destination based क्यों कहते हैं इसको? Because it is collected from the point of view of consumption and not from the point of view of origin like the previous taxes. पहले के जैसा नहीं है कि origin पे जाएगा, it is destination based tax. That's why it is called as comprehensive, multi-staged and destination based tax इसको कहा जाता है। याद रखना, इसीलिए इसको कहा जाता है। अगर इंडिया में बात करें तो as I said, the first committee who recommended for creation of GST was Asim Dasgupta committee. इनका रिकमेंडेशन तभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। किसके रिकमेंडेशन पे हमने एक्सेप्ट किया? इट इज विजय केलकर कमेटी, जिनके रिकमेंडेशन पे वी हैव केम अप विद जीएसटी। इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, रादर वी विल से इंडिया इज वन ऑफ द लेट कंट्रीज। काफी लेट हमने इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन द वर्ल्ड वाज फ्रांस, वेराज आज की डेट में आप देख सकते हो 70% से ज्यादा कंट्रीज जीएसटी का यूज करती है। इंडिया इज वन ऑफ द लेट कंट्रीज टू इंट्रोड्यूस जीएसटी। तो फ्रांस ने जीएसटी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। नाउ व्हाई रिसेंटली इट इज कमिंग इन न्यूज? आई होप अब जीएसटी की चीजें काफी क्लियर हो गई, आपको पता है जीएसटी क्या होता है, क्यों लगाया गया, क्या प्रोसेस है, लाइक व्हाई ऑल दिस थिंग्स हैव हैपेंड।
नाउ इफ यू टॉक अबाउट रिसेंट वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन जीएसटी, अब इसमें प्रॉब्लम ये आया था, सेंटर और स्टेट अलग अलग सेम प्रोडक्ट के ऊपर कभी कभी जीएसटी लगा रहे थे, एंड दिस वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम दैट हु इज मे बी सुपीरियर, या फिर किसके डिसीजन मानने चाहिए, या फिर इवन जीएसटी काउंसिल जो है, क्या उस जीएसटी काउंसिल के डिसीजन बाइंडिंग होते हैं नेचर में. All these doubts came in, and that's why Supreme Court का verdict आया that both union as well as state government have equal, simultaneous and unique power to make GST laws. And the recommendation of GST Council, where they have been one third and two-third of voting share, right, and decision is taken by three-fourth, they are not binding on them. ये अच्छे से याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है कि जीएसटी काउंसिल के डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते. अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आता है तो यू शुड नो द डिसीजंस आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर ऑफ जीएसटी काउंसिल. सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, और इनका ये मानना है दैट बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव इक्वल पावर होनी चाहिए. Now recently why it is in news? It is in news because there is a GST rate में hikes हुए. होटल रूम्स विथ अ डेली टैरिफ बिलो 1000, अर्लियर इनके ऊपर नील था जीएसटी, नाउ इट इज 12%, 12%. 1000 से नीचे भी अगर होगा रेंट तो भी 12% देना पड़ेगा. हॉस्पिटल रूम्स विथ अ डेली टैरिफ ऑफ 5000 और मोर, अर्लियर इट वाज नील, नाउ इट इज 5%, नाउ इट इज 5%. Unbranded pre-packaged and labeled foods, wheat flour, puffed rice, कर्ड, पनीर, है ना, जो प्री पैकेज्ड आते हैं, पहले इसके ऊपर नील था, अब इसके ऊपर 5% है, अब इसके ऊपर 5% है. नॉर्मल व्हीट पे नहीं है अगर प्री पैकेज. अब सिंपल लॉजिक है इसके अंदर, अगर आपको आटा बाहर 12 रुपए केजी मिल रहा है ना, या फिर तो 20 रुपए केजी मिल रहा है, लेकिन आपको अगर शौक है कि आपको खाना है ऑर्गेनिक आटा सिर्फ, जो कि 100 रुपए केजी है, तो आप ऑफ कोर्स यू आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी विथ यू, तो आप टैक्स भी पे कर ही सकते हो. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैव इंक्रीज द टैक्स रेट ऑन विच वन, प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड फूड्स. तो याद रखना, सिंपल आपने दाल आटे के भाव नहीं बढ़ा दिए इन्होंने, अगर प्री पैकेज और लेबल्ड वाला फूड आपको लेना है तो उसके लिए बढ़ा दिए. आप फार्मर से खरीदो देर इज नो प्रॉब्लम, खुला खरीदो देर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको अगर है ना प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड वाले चाहिए तो उस पर आपने बढ़ा दिया है, देर इज 5% का टैक्स. LED lamps, ink knives, blades, spoons and forks. Earlier it was 12%, now it is 18%. तो इसका स्लैब बढ़ाया है, बस नील से हटाया नहीं, इसको स्लैब बढ़ा दिया है, इसका स्लैब बढ़ा दिया है. ठीक है. And total items under GST are 1400 around. 1399 items are under GST. Exempted items are 168. 168 items are exempted. Majorly मैंने excluded items आपको बताए थे, कौन से items excluded है. देन जीएसटी ग्रॉस कलेक्शन काफी अच्छा है, 1 लाख करोड़ के ऊपर कंटिन्यूसली रह रहा है. एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 जो है उसके सारे नंबर्स दे रखे हैं ना, ऑल दीज नंबर्स आर देयर. देन फ्रॉम जुलाई 18, tax hikes will kick in for over 2 dozen goods and services ranging from unbranded food items, curd, milk, buttermilk, low cost hotel, checks and maps. तो इसके अलावा चेक्स पे भी है और मैप्स पे भी है. Tax rates will be lowered for about half a dozen goods and services, including ropeways, truck rentals, where fuel costs are included. तो आप देख सकते हो बहुत सी चीजों पे इन्होंने कम भी किया है, मेजरली जो चीजें जहां पे फ्यूल की कॉस्ट आजकल बढ़ रही है, राइट, देयर इज इंक्रीज इन द फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल कॉस्ट, तो वहां पे कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने वहां पे हाफ अ डजन चीजों पे टैक्स रेट को रिड्यूस भी किया है. It scrapped GST for items imported by private vendors for the defense forces, for the use by defense forces. तो याद रखना, डिफेंस के ऊपर भी इन्होंने इंपोर्ट किए हुए आइटम पे भी जीएसटी को हटा दिया है. These are few new things that happened. Apart from this, last news ये भी है कि there is new record in GST. Yes, they have the GST revenues have scaled fresh highs in 3 of the first 4 months of 2022, going past 1.67 lakh crore in the month of April. तो ये रिकॉर्ड हाई जा चुका है 1.67 लाख करोड़. बट देर इज अनदर की फैक्टर, रन अवे पेस ऑफ इन्फ्लेशन. महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ी है, तो महंगाई के साथ साथ जीएसटी भी इंक्रीज हो गया अमाउंट. Wholesale price inflation, which captures the producer's cost, has been over 10%
for over a year and it peaked to 15.1% in the month of April. तो inflation भी आ ही रहा है. Inflation faced by the consumers on the ground has spiked near 8-year high to 7.8%. जो आप देख सकते हो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो इन्फ्लेशन आया है दैट इज अराउंड 7.8%, whereas होलसेल प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस के इन्फ्लेशन इज अबव, है ना, 10%, whereas कंज्यूमर के एंड पे इट इज अबव 7.8%. तो जैसे जैसे देयर विल बी राइज इन इन्फ्लेशन उसके साथ ऑफ कोर्स टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा क्योंकि टैक्स रेट या फिर टैक्स का अमाउंट अपने आप बढ़ता जाएगा चीजों के ऊपर, and that's why this has increased. The rise in price was a single most important factor for high tax inflows along with the higher imports. तो ये कुछ रीजंस है क्योंकि क्यों टैक्स रेट हाई हुए, क्यों सॉरी टैक्स रेट नहीं, क्यों टैक्स कलेक्शन हाई हुआ है, देन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्यों आया है, देन किस चीजों पे प्रोडक्ट पे जीएसटी इंक्रीज होगा, एंड बिफोर दैट वी टॉक्ड अबाउट ऑल द स्टैटिक थिंग्स रिगार्डिंग जीएसटी क्या है क्यों नहीं है. देयर कैन बी 2 to 3 क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट ऑफ जीएसटी इफ देयर इज अ पैसेज ऑन जीएसटी. 2 से 3 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट पे आएंगे और 1 से 2 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, और 2 से 3 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट ऑन द करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज ऑफ जीएसटी. राइट. सो आई होप जीएसटी इज नाउ क्लियर टू एवरीवन. कभी भी कुछ न्यूज में आएगा तो उसके बारे में आपको आइडिया रहेगा. So this was it for the today's session. Thank you so much. See you in the next session. In between, please stay safe, stay hydrated. कोविड फिर से कहीं कहीं पे आ रहा है, स्पाइक हो रहा है महाराष्ट्र में भी, तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, एंड see you in the next big news session. Thank you so much.